कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें ये बेनिफिट सबसे ज़्यादा करता है? किडनी कैंसर है, मेलानोमा। तो ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी डजंट वर्क। There are some tumors in which immunotherapy don't work, which we called as cold tumors. How is it that immunotherapy is called revolutionary? Chemotherapy has its own side effects. बहुत सारी chemotherapy से hair fall होता है, nausea, vomiting. तो उसको manage करना अपने आप में एक challenge होता है. तो because of lesser side effects of immunotherapy, we can give even in stage 4 cancer patients until the disease is cured. Hello, Namaste. My name is Garima Kaushal and today we're here to talk about cancer awareness. We have a very special guest with us, Dr. Pulkit Nag, Consultant Medical Oncology, Apex Hospital, Jaipur. Welcome, Dr. Pulkit. Thank you so much for being here today. My first question that I would like to ask is, what is immunotherapy? Thank you so much for this wonderful question. So I think everybody in the world is talking about the new drug called immunotherapy. Yes. The very basic question comes at the first stance is, what is immunotherapy? In a very simple sentence, immunotherapy is something which enhances the body's own immune system to fight against the cancer. एक ऐसी ड्रग जो बॉडी के ही इम्यून सिस्टम को पावर देती है कि वो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि वो ड्रग उन कैंसर सेल्स को बीट करके डिजीज के अगेंस्ट, कैंसर के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दे. तो इन अ वेरी सिंपल मैनर, enhancing the body's own immune system to fight against the cancer. That is immunotherapy. And how is it different from chemotherapy? So it's very different. So basically chemotherapy जो होती है हमारे बॉडी में जो बोन मैरो होता है उस पे काम करती है. We have a something called bone marrow on which the chemotherapy tries to eradicate the cells from it. And whenever the chemotherapy works on bone marrow, there are high chances कि हमारे WBC काउंट जो कि CBC में कम हो सकते हैं, प्लेटलेट काउंट्स जो हो सकता है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बोन मैरो से बनती है. एंड कीमोथेरेपी का जो प्लेस ऑफ वर्किंग है वो है बोन मैरो. सो कीमोथेरेपी वर्क्स ऑन मैरो एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट न्यूट्रोपेनिक थेरेपी. यानी कि इसके देने से जो जनरल साइड इफेक्ट्स बॉडी में देखे गए हैं वो है सीमेसी में हीमोग्लोबिन कम होना, WBC कम होना या प्लेटलेट्स कम होना, और कुछ पेशेंट्स के अंदर तीनों चीज़ें कम होना, विच वी कॉल एज पैनसाइटोपिनिया. However, how immunotherapy is different from chemotherapy, as I've told that immunotherapy enhances the body's own immune system. Now, how does it works? So naturally, भगवान की तरफ से हमारी बॉडी में एक T cells होते हैं. उन T cells के ऊपर, T cells are basically immune cells. इनका काम है हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करना, और अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करके उसको इरेडिकेट करना. इन टी सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं PD1. अगर कोई कैंसर सेल्स बॉडी में आती है उनके ऊपर भी एक रिसेप्टर होते हैं जिनको बोलते हैं PDL1. जब कैंसर सेल्स बॉडी में आती है तो PD1 रिसेप्टर्स जो टी सेल्स पे है और PDL1 रिसेप्टर्स जो कैंसर सेल्स पे है, ये दोनों का जब आपस में मिलते हैं तो एक नेगेटिव सिग्नल यानी कि एक नकारात्मक सिग्नल जनरेट होता है जो कि हमारे टी सेल्स को कम कर देता है. उसी कारण से बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है और वो कैंसर से फाइट करने की पावर लॉस कर जाते हैं. जब हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो बेसिकली व्हाट इज इम्यूनोथेरेपी, व्हाट इज द मैकेनिज्म? सो इम्यूनोथेरेपी इज एंटी PD1 और एंटी PDL1. So whenever this cancer cells and T cells combine and both the receptors combine, I told you there is a negative signal. So if we add immunotherapy to this combination, so what immunotherapy will do? It will neglect or negate the effect, the negative signal which is generated by the combination of PD1 and PDL1. So the immunotherapy neglect that negative signal, so our T cells start becoming more proliferating. It start becoming increasing more, which is naturally gifted to the human body by God. And this is the reason how our own immune system becomes stronger and it fight against the cancer cells by negating that negative signal. This is how immunotherapy works, and the different how chemotherapy works on bone marrow. Yeah. How is it that immunotherapy is called revolutionary? What is it so revolutionary? Yeah, so there is a lot of difference why it's called revolutionary, the reasons behind it. See, chemotherapy has its own side effects. As I told you, it works on bone marrow, hair fall होना, वेरी कॉमन, सबको पता है. कीमोथेरेपी देते हैं, बहुत सारी कीमोथेरेपी से हेयर फॉल होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, अलॉट, WBC काउंट्स कम होना, तो उसको मैनेज करना अपने आप में एक चैलेंज होता है.
तो वाई इट इज रिवॉल्यूशनरी, तो इन सब साइड इफेक्ट्स की वजह से देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी वी कैन गिव, कि अगर हम हर 3 हफ्ते में मरीज को दवाई लगा रहे हैं तो हम 6-7 साइकिल से ज़्यादा नहीं दे सकते। जबकि जब हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो वो बोन मैरो पे तो काम नहीं करी, जैसे कि मैंने बताया, तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। तो बिकॉज ऑफ लेसर साइड इफेक्ट्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी वी कैन गिव इन इवन इन स्टेज 4 कैंसर पेशेंट्स अंटिल द डिजीज इज क्योर्ड। जब तक बीमारी कंट्रोल अगर हो भी गई है, आपके पेट स्कैन में, सीटी स्कैन में बीमारी गायब भी हो गई है, तब भी उसका इफेक्ट मेंटेन रहे, हम लंबे समय तक इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके 2 साल 3 साल तक भी इम्यूनोथेरेपी आप दे सकते हो, जिसकी 20 साइकिल, 25 साइकिल, 30 साइकिल कंटिन्यूसली आप दे सकते हो। एंड दिस इज रिवॉल्यूशनरी। कैंसर को मेंटेन रखना, उसके इफेक्ट को मेंटेन रखने के लिए हमको कोई एक ऐसी दवाई चाहिए जो इफेक्ट मेंटेन भी रखे, जिसका साइड इफेक्ट भी ना हो और पेशेंट अपने रूटीन लाइफ में उसको ले सके। दिस इज द रीजन इम्यूनोथेरेपी इज रिवॉल्यूशनरी। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है? होते हैं। इम्यूनोथेरेपी के कुछ बेसिक साइड इफेक्ट है, जैसे कि अगर पेशेंट डायबिटिक है तो शुगर लेवल्स अप एंड डाउन होते हैं, थायराइड लेवल्स अप एंड डाउन होते हैं, फटीग, देयर कैन बी फटीग इन द पेशेंट, बट मोस्ट ऑफ these side effects are manageable. If we see the side effects in the early cycles, we can manage with the supportive care. There are very few patients, 10 to 20%, जिनमें grade 3 साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिनको कंट्रोल करने में के लिए हमको या तो डोज कम करनी पड़ती है या इम्यूनोथेरेपी को स्टॉप करना पड़ता है। बट एज कंपेयर टू कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी इज मोर सेफर टू गिव। Why is it that immunotherapy works so dramatically for some patients? Yeah, wonderful. So, before the development of immunotherapy, we were not aware of these receptors which I was talking about, PD-1 and PDL-1. So nowadays, the science has made such great progression. इतनी तरक्की कर ली है साइंस ने कि अगर हम किसी मरीज का कैंसर डायग्नोस करने के लिए हमको बायोप्सी करना पड़ता है, वो बायोप्सी के सैंपल पे आजकल हम एक बहुत कम पैसों में, और कुछ कंपनियां तो फ्री भी कर देती है कूपन से, उस पे हम एक टेस्ट कराते हैं PDL, जिसकी मैं बात कर रहा था। उसका कुछ परसेंटेज आता है। अगर वो परसेंटेज 1, 2 या 10 से ज़्यादा है तो वो परसेंटेज ये इंडिकेट करता है, वो स्कोर बताता है कि कितना ज़्यादा इम्यूनोथेरेपी का इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैंसर है, जैसे कि लंग कैंसर है, जैसे कि मेलेनोमा है, किडनी कैंसर्स है, स्टमक कैंसर है, इसोफेजियल कैंसर है। इनकी बायोप्सी में जब हम PDL-1 का स्कोरिंग देखते हैं और हमें स्कोर 25, 30, 40, 50% मिलता है, इन पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी दोनों को कंबाइंड करते हैं और एक ही दिन में सारी ड्रग साथ में देते हैं। कीमो अपने तरीके से काम करती है और इम्यूनो अपने तरीके से, और कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स, मोस्टली 6 साइकिल्स के बाद we can stop the chemotherapy and immunotherapy will be continued until the disease is controlled. So this is why immunotherapy works very much in few of the patients in which we can do the testing. और कुछ कैंसर्स है जैसे कि किडनी कैंसर्स और मेलेनोमा, ये नेचुरली इनको हम बोलते हैं हाई इम्यूनोजेनिक ट्यूमर। इनमें इम्यूनोजेनिसिटी इतनी हाई होती है कि अगर हम PDL-1 कराएंगे भी नहीं तो भी रोल खाली इम्यूनोथेरेपी का होता है, कीमो का नहीं। तो ऐसा भी है कि कुछ पेशेंट्स पे, जैसे आप रिसेप्टर्स की बात कर रहे हो, तो ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी डजंट वर्क? Yeah, there are some tumors in which immunotherapy don't work, which we called as cold tumors. Like in breast cancer, in very now there are very less 10% of the patients in which the immunotherapy works. Not in every breast cancer patient, but if we talk about all the cancers, in 80% of the cancers, immunotherapy works. This is why it is so important. Can immunotherapy then cure advanced cancers also? Absolutely. Immunotherapy is indicated in advanced cancer. Even the development of immunotherapy down the line 5 years back, 5 साल पहले, रोल सबसे पहले स्टेज 4 कैंसर्स भी आया था, और जब उनके वंडरफुल रिजल्ट्स मिले तो धीरे धीरे स्टेज 4 से स्टेज 3, स्टेज 2 कैंसर्स के अंदर भी अब नाउ इम्यूनोथेरेपी का रोल आ गया है। तो कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें ये बेनिफिट सबसे ज्यादा करता है इम्यूनोथेरेपी? जैसा कि मैंने आपको बताया, किडनी कैंसर है, Kidney मेलेनोमा cancer. है, इनमें कीमो का रोल ही नहीं है। ये Okay. ट्यूमर्स की इम्यूनोजेनिसिटी इतनी हाई है कि इसमें रोल ही खाली इम्यूनोथेरेपी का है। अब जैसे कि मैं लंग कैंसर की बात करूँ, अगर लंग कैंसर इफ यू डायग्नोज इन 4th स्टेज एंड इफ द PDL-1 स्कोर इज हाई,
सो डाउन द लाइन 10 साल पहले अगर किसी को पता लगता था कि चौथी अवस्था का लंग कैंसर है, तो स्ट्रेट अवे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलता था कि आपके पास 6 महीना साल भर से ज़्यादा जीवन नहीं है. बट नाउ with the help of immunotherapy, along with the benefit of chemotherapy, the lifespan can be extended up to 2 years, 3 years, 4 years, maybe even 5 years. So this is how this is just an example. Also esophageal cancer, stomach cancer, in all these cases immunotherapy is doing wonderful. Head and neck cancers, मुंह का कैंसर, टंग का कैंसर, इन सब में रोल इम्यूनोथेरेपी का आ गया. Wow, Yeah. that's so amazing. Absolutely. So good to hear that. Yeah. What do you think are the side effects that would surprise the patients most Of of immunotherapy, immunotherapy? as I've told you, like once we start giving immunotherapy, there is a dictum. हम एक दो साइकिल के अंदर शुगर और थायराइड लेवल्स खुद से चेक कराते हैं. इवन इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट करने के पहले हम कुछ बेसिक हार्मोनल टेस्ट होते हैं, कुछ बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, वो कराते हैं. अगर चालू करने के पहले उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो हम पेशेंट्स को पहले ही बता देते हैं. अदरवाइज देर इज नो सरप्राइज एलिमेंट इन immunotherapy, but yes, out of 100, in 5 to 10% of the patients, as I told you, there can be hyperglycemia, increased sugar levels, there can be decreased thyroid hormones, or there can be fatigue. Patient feel loss of appetite, they don't like to eat something. This is basically some of the, and some patient have skin rashes. But there are all controllable side effects, and very few, less than 1% of the patient can have serious lung infection, which we call it ILD, interstitial lung disease also. Is that curable? So we have to stop the immunotherapy, take Okay. in opinion of a chest physician, and that can be manageable. Oh. Yeah. Wow, thank you so much, doctor. Like All that my was pleasure. that was really really good to know, and the way you explained also, I'm loving this conversation. Any piece of advice that you would like to share with our audience? So yeah, I just want to say to the fellow audience that be aware. कुछ छोटा सा भी सिम्टम दिखता है, फॉर द वुमेन डू ब्रेस्ट स्क्रीनिंग अबव द एज ऑफ 40, सबको कराना चाहिए साल में एक बार मेमोग्राफी. अगर आपको कोई भी स्तन में गठान दिखती है, मुंह में कोई ऐसा छाला है जो बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहा है, कोई आपको कोई भी ऐसा पेट का दर्द है जो बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने नियर बाय किसी भी एजुकेटेड फिजिशियन से ज़रूर मिलिए. और आपको कोई भी अगर वो एडवाइस देते हैं तो उसको फॉलो कीजिए. तो द लास्ट आई जस्ट वांट टू टेक, डोंट बी अफ्रेड ऑफ कैंसर. लॉट ऑफ पीपल हैज़ अ मिथ दैट इफ यू स्टार्ट द कैंसर ट्रीटमेंट, अगर हम कैंसर का इलाज लेंगे तो वो और हमारा शरीर खराब करेगा. कैंसर से ज़्यादा कैंसर का इलाज कभी नुकसान नहीं कर सकता. दैट्स व्हाट. Thank you so much, doctor. That was amazing. I loved having conversation with you. That's all for today, guys. Thank you so much. थैंक यू.